Hello everyone, welcome to my channel Aspire Classes. From today we are gonna start our new series that is Class 10th Biology ICSE. In this series we will cover all the topics related to the biology subjects according to the syllabus of ICSE board. So let's start our series. We will start our new series with chapter number 2 that is Structure of Chromosome, Cell Cycle and Cell Division. The chapter number first, that is Cell, the Structure and Function of Life, is all about cells. So we will not talk about the chapter number first because you have already studied about cell in 9th class. We're going to start our topic with chapter number 2, that is Structure of Chromosome, Cell Cycle and Cell Division. In 9th class, you have studied about cell. Cell is the basic structure and function of the life. Cell is covered by a membrane that is known as cell membrane. Inside of the cell membrane, there is the ground substance that is known as cytoplasm. In cytoplasm, various organelles are present like mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi body, lysosomes, ribosomes, which perform the basic functions of life. In cytoplasm, there is another cellular structure present known as nucleus. Nucleus is the most important and largest cellular structure found in the So nucleus is the largest and most important cellular structure present in the cell. न्यूक्लियस इज नोन एज डायरेक्टर ऑफ द सेल्स. जैसे कि एक मूवी के अंदर एक डायरेक्टर ही होता है, वो जो सारे कमांड करते हैं, सारे फंक्शंस को परफॉर्म करवाता है, सारे एक्शंस को परफॉर्म करवाता है, इसी तरह एक सेल के अंदर भी एक न्यूक्लियस ही है जिसकी वजह से सारे एक्शंस परफॉर्म होते हैं. लाइक इन अ मूवी, जैसे कि एक मूवी फिल्म को एज हम सेल ले सकते हैं और न्यूक्लियस को यहाँ पर हम डायरेक्टर जो कि एक मूवी के अंदर होते हैं वैसे ले सकते हैं. जैसे कि फिल्म को बनाने में डायरेक्टर का सबसे बड़ा रोल होता है, वही एक्टर्स को बताता है कि कैसे फंक्शंस परफॉर्म होगा, किस तरह करना होगा, कब कितने एक्सप्रेशंस देने हैं. उसी तरह एक सेल के अंदर जितने भी सारे एक्शंस होते हैं, रिएक्शंस होती हैं, वो सारी कमांड कौन करता है, उनको बताता कौन है कि कैसे करना और क्यों करना है, वो कौन बताता है? न्यूक्लियस बताता है. So nucleus is known as the director of the cell. अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, जो न्यूक्लियस होता है वो कवर्ड होता है एक मेम्ब्रेन द्वारा जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंड इसके ग्राउंड सब्सटेंस को हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म. राइट, इसके ग्राउंड सब्सटेंस को हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म. And there is a circular structure, dark circular structure present in the nucleus that is known as nucleolus. In nucleus, a thread-like structure is present, which is known as chromatin material. Right? In nucleus, a thread-like structure is present that is known as chromatin material. Actually, whole nucleus कमांड नहीं करता. न्यूक्लियस के अंदर जो मेन स्ट्रक्चर होते हैं जो कमांड करते हैं कि कैसे सारे फंक्शंस परफॉर्म होंगे, वो कौन करता है? क्रोमेटिन मटेरियल. सो chromatin material has genes which are necessary for performing every functions of the cell. अगर हम एक सेल को विदाउट स्टेनिंग सिंपल माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स में ऑब्जर्व करें तो हमें न्यूक्लियस की ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑब्जर्व नहीं होती. हमें जस्ट एक सेल दिखता है जिसके अंदर एक डार्क सर्कुलर बॉडी प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस. ये जो न्यूक्लियस होता है इसको हम हाई माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं. इसको देखने के लिए हमें स्पेशल डाई की ज़रूरत होती है, स्पेशल स्टेन की ज़रूरत होती है जिसकी वजह से न्यूक्लियस के अंदर की स्ट्रक्चर्स हमें ऑब्जर्व होती है. सो न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर क्रोमेटिन, न्यूक्लियोप्लाज्म all are observed on staining with the specific dye under a high microscope. You have already studied in 9th class that every living organism start their life as a single cell. वो हमेशा हमारे सिंगल सेल से ही अपनी लाइफ को स्टार्ट करते हैं. वो सिंगल सेल आगे डिवाइड करता है और नए सेल्स को बनाता है. राइट, जब सेल डिवाइड कर रही होती है तो उस फेज को हम कहते हैं माइटोटिक फेज.
डिवाइडिंग फेज को जब सेल डिवाइड कर रही होती है तो उस फेज को हम बोलते हैं माइटोटिक फेज। एंड if cell is not dividing at that phase is known as interphase. So cell के जो होते हैं मेनली दो फेज पाए जाते हैं, दैट इज सेल माइटोटिक फेज एंड सेकेंड वन इज इंटरफेज। जो माइटोटिक फेज होता है जिसके अंदर सेल डिवाइड कर रही होती है, उसके अंदर जो ये क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो कंडेंस हो जाता है बहुत ज़्यादा और किसकी शेप ले लेता है, क्रोमोसोम्स की। जबकि इंटरफेस के दौरान क्रोमेटिन मटेरियल एज अ थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के रूप में ही प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। सो क्रोमेटिन मटेरियल और क्रोमोसोम में सबसे पहला बड़ा डिफरेंस यही है कि क्रोमोसोम मोस्टली माइटोटिक फेज के अंदर पाए जाते हैं, जबकि क्रोमेटिन मटेरियल इंटरफेस के अंदर पाया जाता है। जब सेल रेस्ट कर रही होती है, वो डिवाइड नहीं कर रही होती, तो उस फेज को हम बोलते हैं इंटरफेस। और जब सेल डिवाइड कर रही होती है, एक से दो में कन्वर्ट हो रही होती है, तो उस फेज को हम बोलते हैं क्रोमोसोम, सॉरी माइटोटिक फेज। एंड इस फेज के अंदर वो किस रूप में प्रेजेंट होती है, क्रोमोसोम के रूप में। सो व्हाट आर क्रोमोसोम्स? क्रोमोसोम्स आर हाईली कंडेंस्ड कॉइल्ड क्रोमेटिन फाइबर्स। जब क्रोमेटिन फाइबर बहुत ज़्यादा कंडेंस और कॉइल नेचर की हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम कौन से फेज में पाई जाती है? क्रोमोसोम फाउंड ड्यूरिंग द माइटोटिक फेज, वेयर क्रोमेटिन फाइबर फाउंड इन इंटरफेज। क्रोमेटिन फाइबर जो होती है वो न्यूक्लियस का ऑलमोस्ट होल ऑफ द पार्ट कवर ऑक्यूपाई कर लेती है। देखो इसने न्यूक्लियस को लगभग फुल कवर अप कर लिया है, इसने पूरा ऑक्यूपाई कर लिया है। धीरे धीरे क्या होगा, क्रोमेटिन फाइबर कॉइल्ड होने लग जाएगी और कंडेंस होने लग जाएगी, मतलब ये आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाएगा सारा क्रोमेटिन फाइबर्स। और अल्टीमेटली क्रोमेटिन फाइबर एक बहुत ही ज़्यादा कंडेंस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे क्रोमोसोम्स। यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ही क्रोमोसोम बनाया है, लेकिन जैसे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, सो दिस क्रोमेटिन फाइबर विल कन्वर्टेड इनटू द 46 क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के अंदर देखो ये बहुत ज़्यादा जो क्रोमेटिन फाइबर होता है बहुत ज़्यादा एक छोटी सी स्ट्रक्चर यानी एग शेप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसने न्यूक्लियस का बहुत ही छोटा हिस्सा कवर अप किया हुआ है। क्रोमोसोम जो होता है वो दो वर्ड से मिलकर बना होता है, दैट इज क्रोमा प्लस सोमा। क्रोमा का मतलब होता है कलर्ड और सोमा का मतलब होता है बॉडी। सो क्रोमोसोम का मतलब होता है कलर्ड बॉडी। जो बॉडी स्पेसिफिक स्टेन देने पर कलर ले लेती है, कलर देती है, उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। सो जब न्यूक्लियस को या सेल को स्पेशल स्टेन किया जाता है तो तब जो क्रोमोसोम होता है वो एक स्पेसिफिक कलर ले लेता है, इसी वजह से इसका नाम लिया गया था क्रोमोसोम। फर्स्टली क्रोमोसोम वाज स्टडीड इन 1882 बाय जर्मन साइंटिस्ट वोल्डर फ्लेमिंग इन लार्वा सैलमेंडर। सबसे पहले जो क्रोमोसोम डिस्कवर किया गया था वो किया गया था इन 1882 इन सैलमेंडर। ये एक एम्फीबियन होता है और किसने डिस्कवर किया था इसको? वोल्डर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स की। जो क्रोमोसोम होता है वो एक शेप स्ट्रक्चर होता है, राइट। इसके अंदर दो क्रोमेटिड पाए जाते हैं। इट इज मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड्स। सिस्टर क्रोमेटिड्स का मतलब होता है जो क्रोमेटिड एक ही क्रोमोसोम से बिलोंग करती है, दैट इज नोन एज सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये जो दोनों क्रोमेटिड्स होती हैं वो एक पॉइंट पर अटैच्ड होती हैं। दे आर अटैच्ड टू अ पॉइंट दैट इज नोन एज सेंट्रोमियर। जिस पॉइंट्स पर दोनों क्रोमेटिड अटैच्ड होती है तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। सो सेंट्रोमियर इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ टू क्रोमेटिड्स। ये एक बहुत ज्यादा स्मॉल कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन है, राइट। ये बहुत ज्यादा स्मॉल एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन ऑफ द क्रोमोसोम होता है, ऑफ क्रोमोसोम्स। जरूरी नहीं है कि हमेशा सेंट्रोमेयर होता है वो बीच में ही पाया जाए, मतलब दोनों क्रोमेटिड्स को जो बीच के पॉइंट पर अटैच होता है। कई बार क्या होता है सेंट्रोमेयर
एक साइड पर भी प्रेजेंट हो सकता है, मतलब जो क्रोमेटिड्स होती हैं वो छोटी बड़ी भी हो सकती है, मतलब नीचे वाली बड़ी हो और ऊपर वाली छोटी हो। इस पॉइंट को जब डिवाइड कर देते हैं, यही क्रोमेटिड्स को डिवाइड करता है दो पार्ट्स में। तो ये एक ऊपर की तरफ भी हो सकते हैं, ऊपर वाली जो क्रोमेटिड्स होंगी वो शॉर्ट होंगी और नीचे वाली जो क्रोमेटिड्स होंगी वो लार्ज होगी। या फिर हो सकता है कि वो एक पॉइंट पर ही अटैच्ड हो और ऊपर वाली क्रोमेटिड्स एब्सेंट ही हो, मतलब क्रोमेटिड सिर्फ स्मॉल क्रोमेटिड्स एब्सेंट हो, लार्ज क्रोमेटिड ही प्रेजेंट हो। तो जरूरी नहीं है कि क्रोमेटिड हमेशा बीच में ही प्रेजेंट होगा, ये एक साइड पर भी प्रेजेंट होता है, मतलब टुवर्ड द वन साइड और एट द एंड ऑफ द वन साइड। तो डिपेंड करता है कि सेंट्रोमेयर कहाँ पर प्रेजेंट हो। इफ यू लाइक इट, please like and share this video, subscribe the channel and press the bell icon to get notified for more videos. Thank you.